સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ કી જય જય જય, ધામ ધામી મુક્તો કી જય જય જય, મુક્તાક્ષર પુરુષોત્તમ કી જય જય જય. જે ઉત્પત્તિ તથા સ્થિતિ લય કરે વેદો સ્તુતિ ઉચ્ચરે, જેના રોમ સુચિદ્રમાણુ સમા બ્રહ્માંડ કોટી ફરે, માયા કાળ રવિ શશી સુરગણો આજ્ઞાન લોપી ક્ષણ, એવા અક્ષરધામના અધિપતિ શ્રી સ્વામિનારાયણ. મહાધ્યાનાભ્યાસમ વિદતમજસ્ત્રમ ભગવત પવિત્રે સંપ્રાપ્તમ, સ્થિતિમતિવરે કાંતિકવૃષે, સદાનંદમ સારમ પરમહરિવાર્તાવ્યસનિનમ, ગુણાતીતાનંદમ મુનિવરમહં નૌમિ સતતમ. અનેકેભ્યો સદ્ભ્યો વિમલ હરિવિજ્ઞાન દદતમ, ભુવિર્બ્રાહ્મી વિદ્યા હરિવચન રૂપામુદયતમ, હરિધ્યાનાસક્તમ શુભગણમનાદ્યક્ષરમહં, ગુણાતીતાનંદમ સકલ ગુરુમુલે મુનિવરમ. વાણી અમૃતથી ભરી મધુસમી સંજીવની લોકમાં, દ્રષ્ટિમાં ભરી દિવ્યતા નિરખતા સુદિવ્ય ભક્તો બધા, હૈયે હેત ભર્યું મીઠું જનની સુને હાસ્ય મુખે વસ્યું, તે શ્રી જ્ઞાનજી યોગીરાજ ગુરુને નિત્ય નમો ભાવસું. જેની અમૃતવાણી તો વહી રહી સાક્ષાત મહિમા રૂપે, જેની બ્રાહ્મી સ્થિતિ અહોલીન કરે
शुभव्यक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र काकादिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी રીજયા કાકાજીને મલકંતુ મુખ પુલકિત હૈયું યુવાનોને જે ગમે એવા સુરદ ભૂલકુ વિરલ વંદન અહો વસી ભાઈને। બ્રહ્મરૂપ નિજને માનતા વળી શ્રીજી હૈયે ધારતા जे मस्त रहीने प्रभु भजनमा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता। चालू हो गया। મૂર્તિની સ્મૃતિમાં રહીએ સદા મૂર્તિની સ્મૃતિમાં રહીએ જીવન બની જાય સાધુ સમાન જીવન બની જાય સાધુ સમાન તારી આરાધના કરીએ મૂર્તિમાં રહીએ મૂર્તિમાં રહીએ મૂર્તિમાં રહીએ મૂર્તિમાં રહીએ વળપળ વીતે તારા સ્મરણમાં બીજું સર્વે ભૂલાય તારી લીલાઓ નિરખ્યા કરીએ संशय कदी न वताय आपनी आज्ञा में रहिए सदा आपनी आज्ञा में रहिए जीवन बनी जाय साधु समान जीवन बनी जाय साधु समान तारी आराधना करिए મૂર્તિમાં રહીએ મૂર્તિમાં રહીએ મૂર્તિમાં રહીએ મૂર્તિમાં રહીએ કાર્ય કરીએ સંસારના તોયે મૂર્તિ કદી ના ભૂલાય एक क्षण पण जो भूली जइए बीजी कदी न वजाय अक्षर धाम में रहिए सदा अक्षर धाम में रहिए जीवन बनी जाय साधु समान जीवन बनी जाय साधु समान तारी आराधना करिए मूर्तिમાં રહીએ મૂર્તિમાં રહીએ મૂર્તિમાં રહીએ મૂર્તિમાં રહીએ સેવા કરીએ તનતોડ તોયે
अस्मिता ના આવી જાય સુરદ ભાવે વર્તી લઈએ અવગણ કોઈ ના લેવાય આત્મીયતાથી રહીએ સદા આત્મીયતાથી રહીએ જીવન બની જાય સાધુ સમાન જીવન બની જાય સાધુ સમાન તારી આરાધના કરીએ મૂર્તિમાં રહીએ મૂર્તિમાં રહીએ મૂર્તિમાં રહીએ મૂર્તિમાં રહીએ પ્રસંગ આવે કોઈ પણ તોય કરતાપણું ના ભૂલાય સાક્ષી ભાવે જોયા કરીએ ધીરજ ચાલી ન જાય આનંદ ઉત્સવ કરીએ સદા આનંદ ઉત્સવ કરીએ જીવન બની જાય સાધુ સમાન જીવન બની જાય સાધુ સમાન તારી આરાધના કરીએ મૂર્તિમાં રહીએ મૂર્તિમાં રહીએ મૂર્તિમાં રહીએ મૂર્તિમાં રહીએ એવા આશીર્વાદ દેજો સદા એવા આશીર્વાદ દેજો જીવન બની જાય સાધુ સમાન જીવન બની જાય સાધુ સમાન તારી આરાધના કરીએ મૂર્તિમાં રહીએ મૂર્તિમાં રહીએ મૂર્તિમાં રહીએ મૂર્તિમાં રહીએ। સહજાનંદ સ્વામી महाराज की जय जय जय। काका जी महाराज का 4 पॉइंट प्रोग्राम और उसमें ये जो पवई धाम से जो आया है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसमें मुद्दा लिया है तत्व से भगवान को पहचानने के लिए हम 4 पॉइंट प्रोग्राम करते हैं। अभी तत्व से भगवान को पहचानने के लिए विघ्न कौन? विघ्न हमारे अंदर प्रकृति है, हमारे अंदर स्वभाव है, हमारे अंदर अज्ञान। तो जो वल्लभाचार्य पंथ के जो कुछ आचार्य हैं वो क्या बताते हैं? देहाध्यास, फिर इंद्रियाध्यास, फिर प्राणाध्यास और उसके आगे अंतकरणाध्यास। ये जब व्यक्ति इसी में ही मचा पड़ा है तो ये ध्यास के वजह से पाप राशि उत्पन्न होती है। ये ध्यास किया या तो ये ध्यास में हमने कुछ भी क्रिया या कार्य किया तो क्या होता है, यहाँ पे हमने भगवत स्मृति को, भगवत स्वरूप को हमने विस्मृति कर दी। मतलब हमारा मूल रूप क्या है और हमें कौन प्राप्त हुआ है और हमारे हृदय में कौन बैठा है उसकी विस्मृति हो गई और हम देहाध्यास या तो इंद्रियाध्यास या तो प्राणाध्यास या तो फिर अंतकरणाध्यास। प्राणाध्यास भी क्यों? क्योंकि प्राण में एक फोर्स है, ताकत है और वो हमारी ताकत है। तो हम कुछ भी कार्य करते हैं तो हम हमारी ताकत से करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे उससे भी परे जाना है, मतलब कि जो ब्राह्मी शक्ति की ताकत है उसको लेके कार्य करना था और हम क्या करते हैं, हम हमारे प्राणों की ताकत का इस्तेमाल करके कुछ न कुछ कार्य करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पाप राशि उत्पन्न होती है उसके वजह से अज्ञान उत्पन्न होता है और ये अज्ञान को मिटाने के लिए हम 4 पॉइंट प्रोग्राम करते हैं। मूल उद्देश्य क्या है कि हमें ये जो
अज्ञान उत्पन्न हम करते हैं, अपने आप होता है। वो 24 आवर्स अज्ञान उत्पन्न होते रहता है, हम 24 आवर्स पाप राशि को उत्पन्न करते रहते हैं। उसके वजह से क्या होता है कि हमारा जो मूल स्वरूप है उसके बीच में अंतराय आता है, पर्दा क्रिएट होता है। और वो पर्दे को तोड़ने के लिए, उसकी साफ सफाई करने के लिए, उसका शुद्धिकरण करने के लिए हमें ब्रह्मरूप होके परब्रह्म की आराधना करनी है, जैसा हमें सिखाया। जब हम उस ध्यास में रहेंगे, मैं ब्रह्मरूप हूं, उसके ध्यास में रहेंगे। ध्यास में रहना मतलब होश में रहना। मैं ये विचार नहीं हूं, मैं ये भाव नहीं हूं, मैं ये ताकत नहीं हूं, क्योंकि उसकी ताकत के सामने हमारी ताकत कुछ भी नहीं। उसकी ताकत आएगी तो हम हिमालय भी चढ़ जाएंगे, और उसकी ताकत नहीं होगी तो हम खाट में से भी खड़े नहीं हो सकते। हमारी कोई ताकत नहीं है, जब हम बीमार है, असहाय है, तो हम खाट से भी खड़े हो गए। हमको किसी को पकड़ के उठाना पड़ेगा, तो हमारे लिए 4 जन को भागना पड़ेगा। तो वो क्या है? हमारा प्राणाध्यास। और उसी वक्त यदि हम ब्राह्मी शक्ति का इन्वोकेशन करें, और ब्राह्मी शक्ति का इन्वोकेशन करने के लिए हम परब्रह्म शक्ति से जुड़ रहे हैं, जो कि सर्वव्यापी है, वो हम भूल जाते हैं। ब्राह्मी शक्ति जो हमारे अंदर है, जो उनके वजह से खिल रही है, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। पर हम लोगों ने क्या बना दिया? उसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। तो कॉम्प्लिकेटेड में से सिंप्लीफाइड करने के लिए भरत भाई ने कैसे सिंप्लीफाइड किया कि भैया आप मुझे पहली बार कभी मिले वो याद करो, मैंने कभी मुस्कुराया था तो वो समय याद करो, मैंने कभी आपको ऐसे आपके हाथ में प्रसाद दिया था उस प्रसंग को याद करो, मैंने आपके सर पे हाथ रखा था तो वो प्रसंग को याद करो, मैंने आपको कुछ कार्य करने के लिए बोला था तो वो प्रसंग याद करो, आपने कभी कुछ प्रसाद लेके गए थे और भरत भाई ने सबको अपने हाथों से बांटा तो वो प्रसंग याद करो कि भरत भाई ने सब कुछ बांटा था, हम लेके आए, लेकिन भरत भाई इतना खुश होकर सबको दे रहे थे। तो उसके वजह से क्या होएगा? हम हमारे ध्यास में से निकल के हम गुरु के ध्यास में, मतलब कि ब्राह्मी शक्ति अक्षर ब्रह्म के ध्यास में चले जाएंगे। अभी हम भरत भाई को याद करेंगे तो कौन सी प्रकृति याद करेंगे? वो अक्षर ब्रह्म है। तो क्या कहेंगे? उनका नाम, उनका रूप, उसको ध्याएंगे। जब हम उसको ध्याएंगे तो हम उधर कनेक्ट हो जाते हैं। हमारा संपूर्ण फोर्स, इंटेलेक्चुअल फोर्स जो है, वो भरत भाई की ओर दौड़ने लगता है। जो माया में घूम रहा था, जो संकल्प विकल्प में घूम रहा था, उसके जगह पे कहाँ पे घूमेगा? अभी वो भरत भाई के इर्द गिर्द घूमेगा। अभी भरत भाई का जो भी पावर है, वो कैसा पावर है? एक नाइट लैम्प के जैसा है। नाइट लैम्प मतलब अभी भर दरिये के बीच में वहां पे पत्थर है तो दिवा डांडी रखते, तो दिवा डांडी पे उसके ऊपर एक लाइट जलती रहती और वो चारों ओर प्रकाश फैलाती है। तो दूर से भी दिखता है, 3-4 किलोमीटर दूर से दिखता है कि यहाँ पे कोई किनारा आ रहा है, यहाँ पे नजदीक में पत्थर है, तो हमें जहाज को सलामत डिस्टेंस पे रखना, नजीक नहीं जाना है। तो उसी तरह जो वो लाइट, जो प्रकाश की किरण 4 किलोमीटर दूर तक दिखाई देती है समुद्र में, तो उसी तरह से भरत भाई के अंदर से जो दिव्य प्रकाश निकलता है, वो मेरे अस्तित्व के अंदर ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। उनके पास में परब्रह्म की शक्ति है, हालांकि इस आंखों से देख नहीं सकते, पर उनको बार बार याद करने से मेरे अंदर एक आनंद उभरता है। वो आनंद कहाँ से उभरा? वो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे आई? मेरे अंदर स्फूर्ति कहाँ से आई? हम जब भी प्राणा की बैलेंस नहीं रहती है तो हम कभी लगता है कि थक गया, अभी ये खाना कैसे पकाऊंगे, अभी ये बाहर से ये चीज़ लानी है, नाके पे जाके मैं कैसे चीज़ लाऊंगी, अभी घुटने में तो दर्द है। लेकिन जब उनको ध्यान करके बाहर जाने के पहले उनको हम बोलते हैं, महाराज मेरे साथ में चलो, काका जी महाराज मेरे साथ में चलो, भरत जी महाराज मेरे साथ में चलो, तो क्या होएगा? हमने इन्वोक किया और उनकी शक्ति का आह्वान करके हम बाहर जाते हैं, तो थोड़े समय में हम भूल जाते हैं कि मुझे ये तकलीफ थी, वो तकलीफ। हम अच्छे से अच्छे वेंडर के पास में जाते हैं, अच्छी से अच्छी चीज़ लेके वापस आ जाते हैं और हमारा कार्य भी हो जाता है। और फिर हम सोचते हैं, जब जाने के पहले सोच रही थी तो मेरी में तो ताकत नहीं थी, तो ये ताकत आई कहाँ से? तो वो ताकत से जुड़ने के लिए, वो ब्राह्मी शक्ति से और वो परब्रह्म की कृपा से जुड़ने के लिए
हम जिस नाम रूप ऐसे अक्षर ब्रह्म को या तो गुणातीत सत्पुरुष को याद करते हैं, और वो याद करने के वजह से हमारा जो पाप राशि का जो उत्पन्न होना का जो समय है वो हम कम कर देते हैं। उसके वजह से हम ब्राह्मी शक्ति में चले जाते हैं, हम आत्मा के जोन में चले जाते हैं, और जब हम आत्मा के जोन में चले जाते हैं तो हम कर्म नहीं कर रहे। फिर कौन कर्म कर रहा है? गुरुजी कर्म कर रहे हैं, ब्राह्मी शक्ति कर्म कर रही है, भरत भाई कर्म कर रहे हैं। और जब भरत भाई कर्म कर रहे हैं तो उसकी कोई पाप राशि हुई नहीं। जब पाप राशि जन्म नहीं हुई तो उतना अज्ञान नहीं हुआ, तो उतना अंधकार दूर हुआ, तो उसके वजह से हम धीरे 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 तत्व की ओर बढ़ रहे हैं। अभी दूसरा है स्वरूप योग। अभी सबसे पहले इस धरती के ऊपर स्वरूप योग की बात किसने की थी? तो जो माधवाचार्य आए थे उन्होंने जो प्रिंसिपल रखा वो द्वैत प्रिंसिपल रखा। वो माधवाचार्य के आगे फिर अपने दूसरे शंकराचार्य आए, उनने अद्वैत मत रखा, और उसके आगे जो रामानुजाचार्य आए उन्होंने विशिष्टाद्वैत मत रखा। अभी ये रामानुजा संप्रदाय में कभी एक समय में साउथ इंडिया में प्रहलाद जी ने जन्म लिया रामानुजाचार्य संप्रदाय ने, और वो व्यास रायारू बन के वहाँ पे स्थापित हो गए और पूरे साउथ इंडिया में वो भ्रमण करते थे और अपना विशिष्टाद्वैत जो मत है, मतलब कृष्ण और राम की जो भक्ति है, वो सबको प्रसारित कर रहे थे। पर उन्होंने देखा कि जो ब्राह्मी शक्ति है, वो जो भजन की शक्ति है, जो क्या बोलते हैं भक्ति की जो लय है, लय वो बिगड़ गई। लोगों के अंदर भोग विलास की जो आसक्ति है वो बहुत बढ़ गई है, और उसके वजह से भगवान के प्रति की जो आस्था है वो लोगों में बहुत कम हो गई है। उसके वजह से चोरी चकारी, गलत काम, गलत विचार, गलत आचार, वो सब बहुत बढ़ गए। तो उनको सपने में नारद मुनि आए। अभी नारद मुनि सतयुग में प्रहलाद के गुरु थे, और उन्होंने ही इंद्र से उसकी रक्षा की थी, और वो लेके गए थे अपने आश्रम में, और वहाँ पे नारायण नारायण का जाप करवाया था, और उनको वो नारायण की भक्ति में सफल किया था नारद जी ने। अब नारायण जी सपने में आके क्या बोलते हैं, अभी मेरा इस पृथ्वी में आने का समय हो गया है, और अब जब मैं ये ग्रॉस बॉडी में आऊंगा तो क्या होएगा, मेरी विस्मृति हो जाएगी, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, मेरी जो डिविनिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो आप मुझे कहाँ से भी आके मुझे वापस वो नॉलेज, वो जो उसको क्या बोलते हैं, जो विजडम है, वो विजडम आप मुझे दें। वो ठीक है। तो जब वो आए तो वो किसके नाम से आए? वो एक करोड़पति के घर में आए, एकदम करोड़पति, उस वक्त के करोड़पति साउथ इंडिया के, जिसका व्यापार चारों ओर चलता था, और राजा भी उसके पास में गहने वगैरह लेते थे और सोने के गहने बनाने का काम करते थे। तो जब वो बचपन में जब उनका जन्म हुआ तो उसको किसी ने फेंक दिया नदी में कि उनके घर में ये बेटा नहीं होना चाहिए, शत्रुता से। तो उस वक्त वो व्यास रायारू वहाँ से पसार हो रहे थे, उन्होंने देख लिया, उन्होंने बच्चा के अपने पास में लिया और देखा, तो उनको वो सपना याद आया कि हाँ यही नारद है। तो ब्लेसिंग्स दिया और वापस आते हैं, घर में जाते हैं। सब बहुत सारी स्टोरी लंबी है, पर जब वो सेकंड टाइम आते हैं तो 8 साल के थे, और उनके अंदर एक पीड़ा थी, उसकी मदर गुजर गई थी, और उनको संगीत सीखना था। तो वो ढूंढते ढूंढते वो व्यास रायारू के पास में पहुंच गए, कैसे भी करके पहुंच गए। तो वहाँ पे पहुंचने के पहले एक सरपंच ने उसको चोर करके पकड़ के रखा था। तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब धरती के अंदर का छुपा जो भंडार था, द्रव्य का भंडार था, सोना, हीरा, मोती, माणिक, वो सब दिखाया, और फिर आखिर में एक हनुमान जी की मूर्ति निकली। तो वो सरपंच को भी वो व्यास रायारू के पास में आना था कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैं क्या करूं। तो जैसे ही वो आए, 8 साल के वो नारद आए, तो वो पहचान गए। तो वो जहाँ पे बैठे थे वहाँ से उठ के उनको रिसीव करने के लिए आए। सब कुछ बातें हुई, फिर वो जो खजाना था वो सरकार को देने को बोला, और हनुमान की मूर्ति का ऐसा बताया कि मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, वो मंत्र में देकर ये जो मूर्ति है ऐसी बहुत सारी मूर्ति बनाओ, बहुत सारे गांव-गांव में उसकी पूजा करो और भंडारा चालू करो, और आपका भंडारा कभी खत्म नहीं होएगा, ऐसा आशीर्वाद दिया और उसको जाने दिया। फिर इसको, ये जो नारद जी थे, उसको क्या किया कि नॉलेज दिया, इतना सारा, बहुत सारा नॉलेज दिया। बोला मैं जो नॉलेज है ना, मैं तुमको पूरा वेद पुराण का 6 महीने में नॉलेज दे दूंगा, लेकिन आपको वो महाभारत और रामायण
उसका पूरा जो है संगीतबद्ध तरीके से गांव-गांव में घूम के आपको उसका प्रचार करना है। तो क्या हुआ, वो चले गए, उनको बता दिया तेरे गुरु यहाँ पे, संगीत के गुरु यहाँ पे, वो चले गए। फिर व्यास रायरू के शिष्य ने पूछा कि आपने इतने 8 साल के बच्चे को सर पे क्यों बिठाया, कौन है वो? फिर उन्होंने बताया कि सतयुग में मैं उसका शिष्य था और मैं प्रहलाद था और ये नारद मुनि है, और वो नारद मुनि ने यहाँ पे आने के पहले मुझे बताया था कि मुझे विजडम देना, मैं भूल जाऊंगा। तो वो ये नारद मुनि आए हैं। तो वो नारद मुनि कौन है, वो क्या करने वाले हैं, वो सब उसको बताया। फिर उसको तत्व की बात बताई कि नारद जी अभी किस शरीर में है। ये टेक्निकल प्रश्न है। नारद जी तो अजर अमर है, तो यहाँ पे जो आए नारद जी वो कौन, और जो दिव्यता में सारा ब्रह्मांडों में घूमने वाले नारद जी है वो किस रूप में है। तो उन्होंने फिर समझाया कि ऐसा नहीं है कि नारद जी इधर है तो उधर नहीं है। नारद हमारे मानव जीवन में 4 शरीर, 4 में से पहला जो शरीर है वो स्थूल शरीर, दूसरा जो शरीर है वो सूक्ष्म शरीर, उसको अनिरुद्ध शरीर बोलते हैं। रामानुजाचार्य संप्रदाय में उसको अनिरुद्ध शरीर बोलते हैं, निर्गुण तेज वाला, निर्गुण ताकत वाला। फिर उसके आगे लिंग शरीर, लिंग शरीर मतलब आत्मा का शरीर। आत्मा कैसा लिंग शरीर है ना, तो वो शरीर, तो आत्मा भी वहां पे शरीर बताया है। रामानुजाचार्य संप्रदाय ने फर्स्ट टाइम उस आत्मा को लिंग शरीर बताया है। वो शरीर है, भले ही चेतन है, जड़ नहीं है, फिर भी वो शरीर है। वो बात रामानुजाचार्य पंथ में प्रहलाद जी ने बताई, जो व्यास रायरू करके इस पृथ्वी पे भ्रमण किया। फिर उसके आगे बोले कि जो चौथा शरीर है वो स्वरूप शरीर है। तो रामानुजा संप्रदाय में जो हमारे उद्धव जी जो रामानंद स्वामी बन के आए, तो वही वो प्रिंसिपल लेके आए कि जो पहचानना है वो स्वरूप शरीर है। उसको बोलते हैं तत्व से पहचाना भगवान को। स्वरूप शरीर को आपने पहचाना तो ही आप बोल सकते हैं कि मैंने तत्व से प्रभु को पहचाना। वो स्वरूप शरीर आपके अंदर है, मौजूद है। और वो बात व्यास रायरू ने 800 साल पहले उन अपने शिष्य को बताई। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है रामानुजाचार्य का। जो बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि लिंग शरीर भी नहीं, स्वरूप शरीर को हमें देखना है। और इस वक्त नारद जी स्वरूप शरीर से संपूर्ण ब्रह्मांड लोक में है, लेकिन भौतिक शरीर में यहाँ पे आए हैं, इसीलिए उनकी जो प्रज्ञा है वो लिमिटेड हो गई है, और इसीलिए समय आने पर मैं उनको वो प्रज्ञा दूंगा। तो इसीलिए मैं उठ के इतने दूर उनको रिसीव करने के लिए आया। मैं वो सरपंच को लेने के लिए नहीं आया था, मैं नारद मुनि को रिसीव करने के लिए आया था। कि मैं बहुत समय से राह देख रहा था कि वो आएंगे, तो कभी आएंगे, तो वो राह देख रहे थे, तो वो आए। तो तत्व से पहचानने की जो बात है वो रामानुजा संप्रदाय में पहले से अपने ग्रंथों में या तो शास्त्रों में लिखी हुई है। उसको कहते हैं तत्व से प्रभु को पहचानना। स्वरूप शरीर तलक आपको पहुंचना है, ये आपका लक्ष्य है। यहाँ पे लिखा है ना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में लिखा है तत्व से भगवान को पहचानना वही आपका लक्ष्य है। तो वो लक्ष्य कैसे फुलफिल होएगा, हम कैसे बोल सकते हैं? वो स्वरूप को हमने पहचाना, जिस स्वरूप में वो विचरण कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हमने उसको पहचाना। मतलब सबसे पहला क्या पहचाना कि जो महाराज है, जो सर्वोपरि है, हम जो कहते हैं वो परब्रह्म है। परब्रह्म मतलब सर्वोपरि इस तरह से है कि वो अमायिक है। बाकी जितने भी अवतार है, जितने भी देवी देवता है, चाहे कृष्ण कहो, चाहे सदाशिव कहो, चाहे शिव कहो, चाहे माता जी कहो, वो सब क्या है? माइक जगत के। फिर उसके आगे जो दत्त भगवान की जो परंपरा है, साईं कहो, नित्यानंद कहो, कलकोटी समर्थ कहो, वो अर्धमाइक जगत से है। और अर्धमाइक जगत से ऊपर जो पूर्ण हम जो है, जो पूर्ण हम बोलते हैं, जो पूर्णमद पूर्णमिदम की जो बात करते हैं, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते की बात करते हैं, वो पूर्ण पुरुषोत्तम जो स्वामीनारायण भगवान हैं, वो यहाँ पे सहजानंद स्वामी बनकर जो पृथ्वी पे विचरण कर रहे हैं, उसको मैं ध्या रहा हूं।
तो वो हुई भगवान की पहचान कि मैं किसको ध्यान रहा हूं, तो कि तत्व से वो परब्रह्म है, वो सर्वोपरि है, सभी अवतार के अवतारी है, वो पूर्णमिदम और पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, वो पूर्णता प्रदान करने वाले हैं और वो परम पद को देने वाले हैं जीते जी। उसको मैं ध्यान रहा हूं, वो तत्व की पहचान। उसका जो स्वरूप शरीर है वो मेरे अंदर निहित है, सिर्फ मेरे अंदर नहीं, सभी विश्व के कण कण में, हर एक के आत्मा के अंदर जो निहित है वो यही तत्व है। वो प्रभु पिता परमेश्वर जिसने ये माइक जगत का निर्माण किया है, वो परमेश्वर, वो परम पिता वही है। और हमारा लक्ष्य उसके घर में जाने का, वो हमारा घर है। उनका जो धाम है वो हमारा घर है। कभी हम वहां से निकले थे और ये माया जगत का आनंद लेने के लिए आए थे, लेकिन फंस गए। आत्मा ने कभी जन्म लिया नहीं है, आत्मा की कभी मृत्यु होती नहीं है, इसलिए वो आत्मा आया था धाम से, प्रभु ने भेजा कि जाओ मजा करो, आनंद लो। और वो आनंद लेने के चक्कर में हम कितने नीचे तलक आ गए कि हमें अभी सफोकेशन होता है। अभी ऐसा लगता है कि हम अपने पिता के घर में कभी पहुंचे। जैसे हम बचपन में हम हमारे घर से नाना के घर में जाते थे, तो हमें वो ट्रेन के अंदर वो चुक गाड़ी का जो धुआं दिखता था और जो आवाज आती थी, तो हम इतने तलपापड़ रहते थे कि हमें कभी हम वो ट्रेन में बैठे और वो आवाज सुने, वो जो विसल की आवाज है, वो विसल की आवाज कभी हमको सुनने को मिले, तो वो कान तरसते थे, वो आंखें तरसती थी, अरे इंजन दिखना है, वो काला धुआं छोड़ने वाला इंजन, वो विसल मारने वाला इंजन, फिर वो पहिया कैसे चलता है, उसकी जो कड़ है वो कैसे पहिए को चलाती है, वो देखने का तालावेली लगता था। फिर वो जो हवा पास होती है, जो पेड़ पास होते हैं, उसका जो आवाज, जो ध्वनि आता था, जो पटरी से ध्वनि आता था, वो ध्वनि में एकलय होने का आनंद जो आता था ना, वो आनंद कुछ और था। और फिर नाना के सामने जाके उनके बट्टा गोरे लेने का जो आनंद था, वो तो कोई और ही अलौकिक आनंद था। वो तो पारलौकिक आनंद था कि उनकी भी पुछताई हुई सेवा थी, और वो भी लाला को हर रोज सुबह में स्नान वगैरह करा के सब बंटा गोरी वगैरह धरते थे, और उनका सब पूजा पाठ वगैरह हो गया तो सबको बुलाते थे बूम मार के, छोरू आ जाओ। तुम कहाँ भी खेलते थे तो आ जाते थे और बंटा गोरी देते थे। तो बंटा गोरी थोड़ा थोड़ा करके खाते थे, और उसका जो स्वाद था ना, वो इधर का स्वाद नहीं था, पृथ्वीलोक का स्वाद नहीं था, वो अलौकिक स्वाद था। वो खा के हम ऐसे गुल हो जाते थे, पूरा खेलना भूल जाते थे, हम बैठ जाते थे, किधर बैठ जाते थे हमको पता नहीं, उसको चबाते थे, थोड़ा 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 करके खाते थे। ऐसा लगता था और मिले और मिले, पर नाना बोलते थे बस अभी मंदिर बंद हो गया अभी नहीं, अभी कल तो जो हमारा जो चेतना है, जो कण कण में फैला है, तो तत्व से पहचानना मतलब हम किसको ध्यान रखें। मेरे पिता कौन है? मेरे पिता को मिलने के लिए ये आकुल व्याकुल हो गया है, लेकिन उसकी भाषा हम कभी समझेंगे? हम बीमार क्यों ज्यादा से ज्यादा पड़ते हैं? क्योंकि उसको जब भी स्मृति होती है, क्षण भर के लिए भी स्मृति होती है, तो वो लालायित हो जाता है कि अभी मुझे जाना है, मेरे पिता के घर में जाना है, लेकिन उसकी लैंग्वेज को हम समझ नहीं सकते, और उसके वजह से हमें सब अंदर प्रकृति में गड़बड़ होती है। और जो प्रकृति में जो गड़बड़ होती है उसका अलाइनमेंट कौन करता है? गुरु तत्व करता है। जिसको एक झलक मिल गई ना, उसकी एक बार झलक मिल गई, फिर आत्मा अपने हाथ में रहता नहीं है, आपे में नहीं रहता है। फिर उसको जो याद आ गया, अरे ये तो मेरा मूल घर है और मूल घर में मुझे वापस जाना है, तो अभी मेरा सहारा कौन? तो फिर गुरु। तो ये मेरा सहारा है, वो आत्मा को पता चल जाता है। इसलिए गुरु क्या करते हैं? उसको शांत करने के लिए वो खुद मंत्र के रूप में अपने अंदर वो स्वरूप शरीर बनाने के लिए अंदर बैठ जाते हैं आत्मा के पास में। तो वो आत्मा के शरीर के अंदर जाते हैं और कौन सी शक्ति को जगाते हैं? ब्रह्मी शक्ति को जगाते हैं, ब्रह्म ज्योत को जगाते हैं। और ये जो ब्रह्म ज्योत को जगाने वाले कौन हैं? वो गुरु है, सदगुरु है। तो तत्व से भगवान को पहचाना, उसी तरह से तत्व से गुरु को, सदगुरु को पहचाना, वो दूसरा मुद्दा है जो इसमें लिखा नहीं है, पर मैंने जो चिंतन मनन किया उसमें मुझे ये तीन मुद्दे मिले कि एक तो तत्व से यदि भगवान को पहचानना है तो तत्व से सदगुरु को पहचानो, और तत्व से स्वयं को पहचानो।
तत्व से भक्त को पहचानो। भक्त और भगवान की भक्ति है, तो हमें भक्त को कैसे पहचानना है, हमें गुरु को कैसे पहचानना है और भगवान को कैसे पहचानना है। तो जो तत्व से सदगुरु को पहचानना है तो उस तरह से पहचानना है कि जो मुझे मिले हैं, जिस मानव रूप में मिले हैं, वो ही उनके अंदर ही वो अक्षर ब्रह्म की शक्ति है, गुणातीत की शक्ति है, और उनके माध्यम से ही, उनकी कृपा से ही, उनको राजी करने से ही मेरे अंदर, वो ब्रह्म ज्योति के अंदर वो स्वरूप शरीर का निर्माण होगा, वो मूर्ति का निर्माण होगा, जो पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद श्री स्वामीनारायण भगवान की मूर्ति वो बनाने वाले हैं, वो मुझे आत्मा को प्रदान करने वाले हैं। और जब वो प्रदान करेंगे, जब वो गढ़ेंगे, तब जो आवेश आएगा आत्मा के अंदर से, जो आवेश आएगा या तो जो अभिगम निकलेगा, उस अभिगम को कंट्रोल करने के लिए वो कंट्रोलर मेरे पास में, वो ताकत, वो फोर्स, वो कौन सा फोर्स है? सदगुरु का फोर्स कौन सा है? अमायिक फोर्स है। गुणातीत का फोर्स भी कौन सा है? अमायिक का फोर्स है ना। तब यहां पे हरकचंद भाई की बात याद आती। हरकचंद भाई क्या कहते हैं कि दिसो छो दो पर वो एक। तो पहले तो समझ में नहीं आया, वो हफ्ते भर जब जाऊं तो यही बोले, दिसो छो दो पर वो एक, दिसो छो दो पर वो एक। तो पहले पूछना पड़ा ये दो कौन है, क्योंकि आता तो मैं एक हूं, आता मैं एक हूं, तो वो दो दो क्यों बोलता है? कौन दो है? दो कौन है? तो फिर वो बोलते हैं गुणातीतानंद स्वामी और सहजानंद स्वामी। वो दिखने में दो है, लेकिन वो है एक, वो दोनों एक है। फिर भी उन्होंने चालू रखा, ये सवाल का जवाब हो गया, फिर भी चालू रखा, दिसो छो दो पर हो एक। अभी ये दो कौन है? फिर से पूछा, तो कि एक भरत भाई और एक पूर्ण पुरुषोत्तम। वो दिखते दो है, लेकिन वो दोनों एक ही है। वो पूर्ण पुरुषोत्तम, वो दोनों एक ही। फिर थोड़े समय के बाद में गुरुजी का एक प्रवचन सुना, उसमें बताया कि जो भगवान अक्षरधाम में हैं, वही यहाँ पे हमें मानव रूप में मिले हैं। तो ये और वो अलग नहीं है, ये और वो अलग नहीं है, दोनों एक ही है, वो समझना है। तब समझ में आया, हाँ, भरत भाई और पूर्ण पुरुषोत्तम एक है, गुरुजी और पूर्ण पुरुषोत्तम एक है। वो उनके माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम ही यहाँ पे क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, सभी जात का खेल खेल रहे हैं। आत्मा को आनंद देने का, आत्मा को ब्राह्मी शक्ति देने का, आत्मा को बल देने का काम कौन करता है? सदगुरु करते हैं ना। हमारा आवेग कितना है? स्मृतियों के वजह से हमारा आवेग कैसा है कि प्रारब्ध आया नहीं कि हम गलत कार्य करने के लिए घुस जाते, संकल्प विकल्प हुआ नहीं और हम दौड़ जाते हैं। अरे कुछ मन हुआ नहीं और मैकडोनाल्ड में पहुंच जाते हैं। अरे कुछ काम हुआ नहीं कि हाँ नहीं मामा के घर में जाना है। अरे भाई क्यों जाना है मामा के घर में? नहीं जाना है। तो ये जो अपना जो माइक जगत है उससे कैसे दूर होना, और जो अलौकिक जगत है, पारलौकिक जगत है, उसको कैसे हमारा जो फ्यूजन है, हमारी एकता है, उसको बढ़ाना। अभी हम दिन में 24 घंटे है, 24 घंटे में हम यदि 23 घंटा हम माया जगत में ही घूमते रहते हैं, तो प्रोग्रामिंग क्या हो रही है? माया जगत की। तो वो 1 घंटे में हमको ये अलौकिक पारलौकिक शक्ति का प्रोग्रामिंग होएगा कैसे? तो वो प्रोग्रामिंग याद दिलाने के लिए ही भरत भाई, वची भाई, दिनकर भाई हर एक के घर घर में जाते हैं, ताकि जो कुछ जाले बने हैं वो सारे जाले, वो आत्मा के शरीर के ऊपर की जो मेमोरी है, जो पाप राशि है, जो अज्ञान है, जो अंधकार है, उसको दूर करके आपको फिर से पारलौकिक जोन में लेके जाने के लिए वो आपके सन्मुख आते हैं। वो अनुग्रह वो बीएपीएस में भी नहीं हो रहा है। आपको मंदिर में जाना पड़ेगा, मंदिर में आपको संत के पास में जाना पड़ेगा, कोई संत आपके पास में आने वाले नहीं है। तो हम कितने लकी हैं कि तत्व से पहचान देने के लिए वो सब स्वयं हमारे घर पे आते हैं, विराजते हैं, हमारे साथ में क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, बातचीत करते हैं, हमारी तबीयत पूछते हैं, हमारे ऊपर कृपा का अढळक कृपा बरसाते हैं। सिर्फ कृपा नहीं, अढळक कृपा बरसाते हैं, जिसके वजह से हमारा आत्मा जो ऐसा सफोकेशन होता है उसको वो शांत हो जाए। उसको पता चले कि अब मुझे माया जगत में नहीं खेलना है, अब मुझे पारलौकिक जोन में खेलना है, और जिसके साथ में खेलना है वो मेरे अंदर ही बसा है। मुझे अब बाहर नहीं जाना, बहिर्मुख नहीं होना है, अभी मुझे अंतर्मुख होना है।
तो इसको कहते हैं कि सदगुरु को तत्व से पहचानना। सदगुरु हमेशा हमें अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करते हैं, और हम क्या करते हैं, हम बहिर्मुखता से ही बात करते हैं। साबु कौन सा दूं? एक बोलेगा हिंदुस्तान लीवर का, एक बोलेगा दूसरी कंपनी का, तीसरा बोलेगा नहीं नहीं वो गुलाल कंपनी का, चौथा बोलेगा नहीं नहीं वो हलाल कंपनी का, पांचवा बोलेगा नहीं नहीं ये नीम करोली का साबुन दो। और काका जी क्या बोलते हैं, संप सूरत भाव एकता का साबुन चाहिए मुझे। तो वो क्या हो गया, अंतर्मुखी बनाने का, अंतर्मुखी बनाने का ये फॉर्मूला है कि हम जब भी अपने भक्तों को उस तरह से देखेंगे कि सामने आई हुई मूर्ति वो ब्रह्म की मूर्ति मनाए, और वो कहती है उसका पालन हम कर सके, हम एक हो सके, तो ही वो तत्व से भक्त की पहचान हुई। तो काका जी ने ये एग्जाम्पल देके क्या करवाया, सदगुरु की पहचान भी करवाई। उन्होंने अपनी पहचान नहीं करवाई, उन्होंने क्या किया, शास्त्री जी महाराज की, योगी जी महाराज की, हरिप्रसाद स्वामी की, साहेब जी की, गुरु जी की, अक्षर बिहारी स्वामी जी की, गुणातीत ज्योत की बहनों की, वो सबकी पहचान करवाई। तो वो क्या क्या कह रहे थे कि ब्राह्मी शक्ति ये सभी में है, सदगुरु तत्व ये सभी में है, चाहे आप जिससे भी जुड़ जाओ, आपकी प्रकृति जहां पे भी फिट होती है उसका जो ज्ञान है वो लेना चालू करो, क्योंकि अनंत अनंत प्रकृति है। प्रकृति का जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है ना वो अनंत है। हो सकता है आपको यहाँ से यदि शांति नहीं मिल रही है तो हो सकता है यहाँ से मिल जाए, हो सकता है वहां से मिल जाए, हो सकता है वो जगह से मिल जाए। और इसीलिए ये जो स्वरूप है वो हमें हर एक के पास में शिविर के रूप में लेके जाते हैं। ऐसे तो हर साल हम अननोइंगली जाएंगे, एक एक दो में जाएंगे तो उतनी कृपा नहीं बरसेगी, लेकिन उत्सव के रूप में जाएंगे तो क्या होएगा, लाख, और लाख में कितने भक्त मिलेंगे, और वो सारे भक्तों का महिमा हमने लिया तो हम किसके बीच में हैं, पारलौकिक शक्ति के बीच में हैं। तो क्या होएगा, हमारा जो इंद्रियाध्यास है, हमारा जो अंतःकरणाध्यास है और जो प्राणाध्यास है, हमारा देहाध्यास है, वो टूटेगा, उनके फोर्स की वजह से टूटेगा। और वो फोर्स की वजह से जब टूटेगा तो हम जो स्मृति लेके आएंगे तो आत्मा को उसमें रम जाने की आदत होएगी। तो क्या होएगा, हम थोड़े थोड़े दिन में वो समय को याद करेंगे, अरे हरिप्रसाद स्वामी ने ऐसा बोला था, प्रेम स्वामी ने ऐसा बोला था, अरे पप्पा जी महाराज ने ऐसा बोला था, अरे ज्योति बहन ने ये बात की थी, अरे हमने ऐसा गरबा गाया था, अरे हमने ऐसा खाना खाया था, अरे हमने प्रसाद में ये लिया था, अरे हम यहाँ पे रुके थे, मैं उसके साथ में रुका था, अरे वो किधर का, पुणे का था, वो मेरे रूममेट में था। तो क्या होएगा, हमारी स्मृति कहाँ पे गई, पारलौकिक जोन में गई। एक है लौकिक जोन, एक है पारलौकिक जोन। तो तत्व से भगवान को पहचानना, तत्व से गुरु को, सदगुरु को पहचानना, और तत्व से भक्त को पहचानना। जब हम तत्व से पहचानेंगे तो हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए फट से तैयार हो जाएंगे। ये क्या है, सॉफ्टवेयर। ये सब तो सॉफ्टवेयर दिए हैं, असली प्रक्रिया कहाँ पे होगी, अंतर्मुखी बनने की होगी। हम जब जब वो स्मृति करेंगे तो स्मृति कहाँ पे है, सबकॉन्शियस माइंड में, और सबकॉन्शियस माइंड में सबसे नजीक कौन है, ब्राह्मी शक्ति। तो हम अननोइंगली ब्राह्मी शक्ति को याद करेंगे। हम कर रहे हैं याद किसको, भक्त को, हम याद कर रहे हैं गुरु को, पर हकीकत क्या है, हम उस ब्राह्मी शक्ति को इन्वोक कर रहे हैं। भक्त को याद करके हम ब्राह्मी शक्ति को इन्वोक कर रहे हैं, समय को याद करके हम ब्राह्मी शक्ति को इन्वोक कर रहे हैं। सिंपल फॉर्मूला है कि आप प्रसंगों को याद करते जाओ और उस प्रसंगों को रिवर्स में याद करते जाओ, वो स्वरूपों को याद करते जाओ कि भाई मंच पे यहाँ पे बैठे थे, या उन्होंने ये शब्द बोला था, या तो उन्होंने ऐसी गिफ्ट दी थी, या तो उन्होंने ये बात कही थी, या तो ये भक्त के ऊपर ऐसा धब्बा मारा था। तो क्या होएगा, हमारी स्मृति के अंदर ब्राह्मी शक्ति घूमने लगेगी, ऑटोमेटिक वो जोन में हम कनेक्ट हो जाएंगे। और उसके वजह से क्या होएगा, हम तत्व से भक्त को पहचानेंगे, तत्व से सदगुरु को पहचानेंगे, और तत्व से भगवान के नजीक जाएंगे। हम आत्मा के अंदर प्रवेश करने की प्रक्रिया को इनिशिएट करते हैं। स्मृति का डायरेक्ट संबंध है सबकॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड का सीधा संबंध है ब्राह्मी शक्ति। तो माइक जितने भी स्तर है वो निकलते जाएंगे और हम प्रोग्रामिंग करते जाएंगे सबकॉन्शियस माइंड को ब्राह्मी शक्ति का जो जो फॉर्मूलाज है कि सामने आया हुआ मुक्त ब्रह्म की मूर्ति बनाए, समसूरत भाव एकता से रहना है, उसके गुण को लेना है, नहीं तो हम क्या करेंगे। अदरवाइज
हम रिलेटिव में क्या है, सब छबरड़ा ही छबरड़ा है, कुछ बात करने जैसी कोई बात ही नहीं है, हम छबरड़ा ही करते हैं। हाँ, इंद्रिय अंतकरण भाव जगत का छबरड़ा ही है, वहां पे ऐसी कोई फॉर्मूला नहीं है, या तो किसी ने बताई नहीं थी आज तलक। ऐसे भरत भाई वसी भाई मिलने तलक किसी ने ये फॉर्मूला ही नहीं बताई थी। इतना जरूर पता था, निंदा नहीं करनी किसी की, पीठ के पीछे भी नहीं करनी, नहीं तो हमारे सारे पुण्य उसको चले जाते हैं। तो वो क्या बोलते हैं, भगवत स्वरूप क्या बोलते हैं, हमें लूटना है। किसको लूटना है? हमारे सामने आया जो भक्त है उसको राजी करके हमें उसका पुण्य लूटना है। तो इसके लिए हम पुण्य लूटने के लिए हम समैया में जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो राजी करो। तो भक्त को राजी करने को जाएंगे तो ब्रह्म की मूर्ति माननी पड़ेगी, तो सर का ताज मानना पड़ेगा। तो वो जो कहेगा वो हमें जल्दी से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और एक्सेप्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक राजी हो जाएगी। फॉर्मूला एकदम सिंपल है। हमको क्या लगता है उसमें क्या दम है, अरे उसमें ही दम। आध्यात्मिकता अपने आप में शुद्ध स्वरूप में बहुत सिंपल है, लेकिन लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि नहीं आपको तो ये ग्रंथ कंठस्थ करना पड़ेगा, नहीं आपको तो तत्व के ये ग्रंथ मालूम होने चाहिए, नहीं आपको इतने सारे भजन आने चाहिए। कुछ नहीं है, सामने आया हुआ भक्त को दिव्य मानो, उसके गुणगान गाने लगो, और आप 4 पॉइंट प्रोग्राम करते रहो। तो क्या होएगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो पारलौकिक शक्ति कार्य करती हो जाएगी, और जब वो कार्य करती हो जाएगी तो आपका हित कैसे होएगा? नहीं हो सकता, उसकी इच्छा के बिना नहीं हो सकता। उसकी इच्छा होगी तो 100% होएगा। जैसे हम 4 महीने सो गए सब है ना, कैसा होता है? वो होता है, वो उसकी इच्छा थी। तो वो जो मलबा है हमारे अंदर प्रारब्ध के रूप में, या तो हमारी क्या बोलते हैं, नालायकी की वजह से हम है नालायक। जो नहीं करना है वो पहले करते हैं और बिंदास करते हैं। एक रात को 2 बजे में ऐसे ही बैठा था और कुछ देख रहा था, तो अचानक भरत भाई की आवाज आई। सब देख रहे हैं, रात को 2 बजे भरत भाई बोल रहे, सब देख रहे हैं, मतलब कि वो तो देख रहे हैं और कोई भी देख रहा है। फिर पता चला हाँ, गुरुजी 2 बजे तक जागते रहते, वो जाग के माला घुमाते हैं। फिर पता चला राजू भाई ठक्कर भी 2 बजे जागते हैं और वो भी माला घुमाते हैं। फिर पता चला ये माधुरी बहन भी 2 बजे जागते हैं, और हरबचंद तो जागते ही रहते हैं, तो वो सब तो देख ही रहे हैं। फिर सबसे सोचा, अरे दिनकर भाई तो अमेरिका में दिन में है, तो वो भी जागते हैं, तो वो भी देखते हैं। टाइम जोन ही अलग है, उनका तो सुबह चल रहा है, दोपहर चल रही है, रात को यहाँ पे 2 बजे, उधर तो दिन के 12 बजे। तब पता चलता है कि ये जो शक्तियां हैं वो हम जागृत हो या सुषुप्ति में हो, वो हमारे साथ हमारे ऊपर दृष्टि किए हुए हैं, और वो अढळक कृपा कर रहे हैं। तो वो अढळक कृपा पाने के लिए हमें 4 पॉइंट प्रोग्राम करना है। तो आगे चले, अभी आगे का मुद्दा लेते हैं कि स्वरूप योग। तो सबसे पहला मुद्दा है स्वरूप योग। स्वरूप योग के बारे में और टेक्निक के बारे में हमने गत 2 भजन संध्या में जानकारी प्राप्त की है, जिसमें पहले आह्वान श्लोक, मतलब रिमेंबर स्वरूप्स, मतलब हम अलग अलग स्वरूप को याद करते हैं, जैसे कि भरत भाई, वसी भाई, दिनकर भाई, माधुरी बेन है, फिर योगिनी बेन है, फिर उसके आगे जाएंगे तो काका जी महाराज, पप्पा जी महाराज, साहेब जी, गुरु जी, ज्योति बेन, वो सबको याद करते हैं। फिर उसके ऊपर जाएंगे तो योगी जी महाराज, फिर उसके ऊपर जाएंगे तो शास्त्री जी महाराज, फिर उसके ऊपर जाएंगे तो कृष्ण जी अदा, भगत जी महाराज, और उसके ऊपर जाएंगे तो गोपालानंद, गुणातीतानंद, और परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी, जो नीलकंठ वर्णी बनके धरती पे आए। वो सबका स्वरूप का हम याद करते करते नीचे से ऊपर तलक जाते। तो वो है प्रथम चरण कि हम सभी के स्वरूप को याद करते हैं, फिर धुन करते हैं। अभी स्वरूपों के साथ के प्रसंग जो है उसमें हम धुन के साथ में लेते हैं। जब हम धुन करते हैं, तो जब हम फर्स्ट टाइम दिल्ली गए थे तो क्या प्रसंग हुआ था, तो मुझे तो याद है एक प्रसंग में फर्स्ट टाइम गया था, तो भरत भाई दरवाजे पे खड़े थे, मंदिर के दरवाजे पे, मेन गेट पे खड़े थे, और उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे हक किया वहाँ पे, ऐसे 2 बाहें फैला के, अरे तलाटी आ गया, अरे बाप रे। बोला इधर पवई में कभी ऐसा नहीं किया, इधर दिल्ली में किया। तो वो क्या था कि वो बताना चाहते थे कि जो वहाँ पे है वही यहाँ पे है, और काका जी आपको वेलकम कर रहे हैं।
फिर उन्होंने बोला वो काका जी की समाधि स्थान है, वहां पे जाओ। क्योंकि मेरा पहला जो प्रश्न था या तो ईगरनेस था, जो पहली ईगरनेस निकली थी, वो मैंने ये पूछा था कि काका जी पवई के, काका जी मुंबई के, और समाधि उधर क्यों, समाधि उधर क्यों? तो वो भी प्रसंग उन्होंने बताए थे। और जब वल्लभ विद्यानगर गए थे तो लेके गए थे रात को 12 बजे। हाँ, तुमको चाहिए था ना दर्शन करने का समाधि साइन का, काका जी का, तो रात को 12 बजे लेके गए। पूरे दिन के थके हुए थे, हाँ, दुनिया भर के लोगों को मिले थे, लेकिन मेरे कमरे में आके, जागते हो कि सोते हो? बोला अभी मेरी आंखें तो खुली है इसलिए जागता हूँ। बोला चलो, बोला ठीक है चलो, नो क्वेश्चन। वो लेके गए तो वहां पे 1 घंटा तक हम बैठ के धुन किया, प्रदक्षिणा किया, धुन किया, और उन्होंने थोड़ी महिमा की, और फिर बाद में हम वापस आ गए। तो वही बात स्मृति में वापस दिलाई कि काका जी सिर्फ वहां नहीं है, यहाँ पे भी है। तो वो जानना चाहते थे कि मैंने हाथ फैलाए तो मैं क्या समझता हूं किसने फैलाए? काका जी ने फैलाए। फिर उन्होंने बोला काका जी की समाधि के पास में जाओ, धुन चालू है। तो काका जी की समाधि के पास में गए। तो अभी ये प्रसंग जो है वो कैसा प्रसंग है? तीनों स्थान को जोड़ दिया ना, पवई को, वल्लभ विद्यानगर की काका जी की समाधि स्थान को, और दिल्ली की समाधि स्थान को। तो स्वरूपों के साथ का जो प्रसंग है, वो प्रसंगों को हम याद करेंगे तो एक ही झटके में हम तीनों समाधि पे पहुंच गए, तीनों धाम में पहुंच गए। तो ऐसी तरह से स्मृति करेंगे, धुन करेंगे, उस वक्त माइंड को किधर डालेंगे? ऐसे प्रसंगों। तो क्या होएगा? माइक वर्ल्ड से वो डिटैच हो जाएगा। यहाँ पे हम इन्वोक कर रहे हैं आत्मा को, अपने ब्रह्मी शक्ति को इन्वोक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ माइंड को कहाँ पे बोल रहे हैं कि सबकॉन्शियस माइंड जाके ये सारी स्मृतियों को बाहर निकालो। तो क्या होएगा कि सदगुरु को अपने अंदर वो स्वरूप शरीर जो है, वो स्वरूप शरीर घड़ने का आसान होता है। जब हम होश में है ना, तब उनका होश से होश मिल गया तो अलाइनमेंट हो गई, तो अलाइनमेंट हो गई ना तो उनको वो मूर्ति घड़ना बहुत आसान, नहीं तो आसान नहीं। हमारा माइंड की तो रोज चल रहा है, गुरु को कुछ और करना है, और हम बार बार सबकॉन्शियस माइंड से निकल के हम बाहर जा रहे हैं, देहाध्यास कर रहे हैं, तो गुरु को वो तकलीफ होती है। तो जो हमको बीमार करके लेटा के रखा ना, वो उनको मूर्ति गढ़ना था कि भाई ये सब फाइनल स्टेज में पहुंच गए हैं, अभी युग परिवर्तन आ रहा है, मार्च 30 2025 में आ रहा है, 4 महीना बाकी है। फिर वो जो कृतिका नक्षत्र के आसपास में जो 26,000 साल जो सूर्य भ्रमण करता है, ये जो सूर्य ग्रह माला जो भ्रमण करती है, उसका 26,000 साल का समय वहां पे एंड होएगा, और फिर से नई साइकिल शुरू होगी। वहां से 26,000 साल की जो साइकिल है वो वहीं से चालू होगी। तो अभी वो उसमें क्या होएगा कि बहुत सारे सूर्यमंडल और बहुत सारे ग्रह, हमारे सूर्यमंडल के 6 ग्रह एक लाइन में आएंगे। तो मेखला नाम का सूर्य है, अपना सूर्य नहीं, मेखला नाम का सूर्य 18,000 गुना बड़ा है निहारिका। वहां से जो पावर आएगा वो सारे ब्रह्मांड के नवखंड के अंदर के, मतलब ये निहारिका के अंदर के बहुत सारे ब्रह्मांड में जहां जहां मानोगे वहां पे कॉन्शियसनेस बढ़ाएगा, मतलब कि 3rd डायमेंशन से 5th डायमेंशन में लेके जाएगा। मतलब कि प्रकृति चेंज होने वाली है, सबकी प्रकृति चेंज होने वाली है, डीएनए चेंज हो जाएगा। डीएनए चेंज होएगा मतलब जहां जहां पे डीएनए के चेन में जहां जहां पे खामियां हैं वो खामियों को पूरा जाएगा। खामियों को पूरने के वजह से हमारी जो परंपरागत डिजीज आते हैं वो खत्म होएंगे, हमारी लाइफ स्पैन है वो बढ़ेगी, फिर हमारी कार्यशक्ति है वो बढ़ेगी, फिर हमारी मेमोरी पावर है वो बढ़ेगी, फिर हमारे इंटेलेक्चुअल पावर्स वो बढ़ेंगे। ये तो प्रोग्राम है 1994 से 2030 तक का ये प्रोग्राम है कि युग परिवर्तन का ये जो ग्रिड है, इसको ग्रिड बोलते हैं, जो जोन है वो जोन में से पास हो रहे हैं। और इसीलिए मैंने 2004 में गिने थे, सिर्फ मुंबई की धरती के ऊपर 40 स्पिरिचुअल मास्टर्स आए हैं, और उन्होंने हर एक सिटी के अंदर, इंडिया के हर एक सिटी के अंदर एक स्वाध्याय केंद्र रखा है, और वो लोग हर हफ्ते मिलकर कुछ ध्यान, साधना, मेडिटेशन, भजन, कीर्तन वो सब कर रहे हैं। तो उसके लिए ये तैयारी है। तो वो प्रसंगों को याद करो
तो आने वाले प्रसंग को भी याद करो कि भैया युग परिवर्तन आ रहा है, कृतिका नक्षत्र का एक राउंड पूरा हो रहा है, सेकंड राउंड चालू होने वाला है, सारी प्रकृति में ऊपर नीचे होने वाली है, और उसके लिए हमें प्रिपेयर कर रहे हैं। कौन प्रिपेयर कर रहे हैं? भरत भाई, वशी भाई, दिनकर भाई। और इसीलिए ये बीमारी है कि हमें ये ध्यास में से निकल के पाप राशि में से पुण्य राशि में जाना है, और हमारे जो ब्रह्म ज्योति का जो स्वरूप है ब्रह्म ज्योति में जाना है, ताकि हम स्वरूप शरीर के अंदर स्थिर हो सके। तो वो है मुद्दा 4 पॉइंट प्रोग्राम। मुद्दा क्या है? 4 पॉइंट प्रोग्राम। आगे चलते हैं। स्मृति यानी कि महाराज से लेके सभी स्वरूपों के प्रसंग और मंदिर की मूर्तियों को याद करना, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब यहाँ पे अनगिनत प्रसंग हो सकते हैं, अनगिनत, हर एक के अपने अपने अनगिनत प्रसंग हो सकते हैं। अभी इसके अंदर लिखा है स्वामी की बात प्रकरण पहला की पहली और 343वीं, प्रकरण 4 की 143वीं, और वचनामृत प्रकरण 16, 27, 37, 62 और जैतलपुर 4-5 के मुद्दे को भी हम याद कर सकते हैं। तो इसको हम आखिर में लेंगे, अभी नहीं लेते। और स्वरूप योग कितनी टाइम करना है? स्वरूप सुबह का स्वरूप योग स्विच ऑन करने के लिए है, और शाम का स्वरूप योग पूरे दिन का कूड़ा कचरा जलाने के लिए है। ये कूड़ा कचरा जलाने का मतलब जो पाप राशि देहाध्यास के वगैरह से हो गई है, माइक जगत में घुसने के वजह से हो गई है, वो सारी पाप राशियों को जलाना। अभी समझ में आया कि हम स्वरूप शरीर में से निकल के हम जो देहाध्यास में, इंद्रियाध्यास में चले जाते हैं, माइक जगत में चले जाते हैं, वहां से जो भी कूड़ा कचरा पैदा किया है उसको जलाना है। अभी ये प्रहलाद की और नारद की स्टोरी नहीं बताता था तो आपको स्वरूप शरीर याद नहीं रहता था। नहीं तो क्या होता है, मैंने 4 शरीर बताए, स्थूल शरीर, अनिरुद्ध शरीर, लिंग शरीर और स्वरूप शरीर। मैंने बोला, अब भूल गए, लेकिन उसमें कहानी जोड़ दी। कहानी जोड़ने की वजह से क्या होएगा कि जो शिष्य था वो गुरु बन के आ गया कलयुग में, और जो गुरु था वो शिष्य बन गया, और जो शिष्य था वो गुरु बन के बैठ गया। तो अभी कभी हम जिंदगी में स्वरूप शरीर भूलेंगे नहीं कि हमारी प्रणाली कौन सी है, उद्धव संप्रदाय की। उद्धव कहाँ से आए थे? रामानुजाचार्य से। रामानुजाचार्य का प्रिंसिपल किसने सबसे पहले बताया था? तो क्या? प्रहलाद। तो व्यास रायारू करके जो आए और उन्होंने जो फैलाव किया धर्म की स्थापना का, तो उसको खोलना है, जो भगवान की भक्ति को उजागर करना है। उसने क्या बोला कि इस बच्चे ने जमीन में छुपे हुए जैसे खजाने को बाहर निकाला, उसी तरह भक्ति रूपी खजाना और अज्ञान को दूर करने वाला जो उजाला है वो सभी में बंद है, उसको खोलना है तुझे। ये प्रतीक है, खजाना को खोलना, धरती में दबा हुआ खजाना को खोलना। वो तो एक लौकिक कार्य हो गया, पर तुझे अलौकिक कार्य करना है कि लोगों के अंदर जो दबी हुई जो शक्ति है, जो ब्राह्मी शक्ति है, प्रभु की भक्ति है, उसको खोलना है संगीत के माध्यम से। संगीत के माध्यम से तंबूरा लिया था और उन्होंने हरेक रामायण और महाभारत के सभी प्रसंगों को काव्य में रूपांतरित किया। दास पुरंदर उसका नाम था, वो नारद जी का नाम था दास पुरंदर, और वो डिज्नी के ऊपर, डिज्नी हॉटस्टार के ऊपर उसका सीरियल है, और वो मैं रात को देखता था। वो हाँ अभी चालू है, वो मैं रात को देखता था 2 बजे, और भरत भाई बोलती थी सब लोग देख रहे हैं सब लोग देख रहे हैं। कौन कौन देख रहे हैं? सभी देख रहे हैं, तो बरोबर ध्यान से सुनो। तो एक गुरु को जब शिष्य बन के वो जब संसार में घुसता है और उसका 2-2 शादी करनी पड़ती है, और हर एक जगह पे षड्यंत्र है, और उस षड्यंत्र में वो जानता है कि ये जो मेरा बेटा है वो पारलौकिक बेटा आ रहा है, और उसको उसमें से बाहर निकल के, करोड़पति साम्राज्य में से बाहर निकल के उसको ये कार्य करना है। बचपन में ही पता चल गया, 6-7 साल का था तभी पता चल गया कि मुझे ये खजाने में नहीं घूमना है, मुझे पारलौकिक शक्ति को उजागर करने के लिए घूमना है। तो वो दौड़ पड़ा। उसके गुरु ने आज्ञा दी। कौन सी आज्ञा दी? 2 रात और 2 दिन बिना सोए, आंखें झपकाए बिना चलते रहना है, तो तुझे तेरा गुरु मिलेगा, संगीत का गुरु, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो उसी तरह यदि हमें अपने गुरु चाहिए, हमें तो ऐसे मिल गए, थाली में मिल गए, थाली में सजा के मिल गए, हाँ मुफ्त में मिल गए,
काका जी क्या बोलते हैं, पहले उसका उसका वैल्यूएशन नहीं है। फुकट में उसके लिए हमारे पास में जो वैल्यूएशन होना चाहिए, जो उसका महिमा होना चाहिए, जो उसका गुणगान होना चाहिए, जो उनके लिए सेवा होनी चाहिए, यहाँ से भी सेवा हो सकती है, जरूरी नहीं पवई जाओ तो ही सेवा हो, जो सेवा होनी चाहिए वो सेवा निकल नहीं रही है। जो प्रतिसाद हमें देना चाहिए वो नहीं निकल रहा है। इसीलिए क्या किया उन्होंने, माया जगत से बाहर निकालने के लिए उन्होंने सबको सुला दिया, बोला सो जाओ, अभी करो चिंतन मनन पड़े पड़े कि क्यों हुआ, कितना मलबा, कितनी पाप राशि जमा की, माया जगत में घूम के उसी का ही 24 घंटे में 23 घंटा उसी का ही चिंतन मनन है। तो करना क्या है, नक्की करो। जब तक वो नक्की नहीं हुआ तब तक हमारे में से कोई उठा नहीं, खड़ा नहीं हो सका। तो इसी के साथ में यहाँ पे हम आज का ये सत्संग यहाँ ही थोड़ा फुल स्टॉप पर लेते हैं या तो कोमा में लेके जाते हैं। तो आगे का जो है, जो सेकंड स्टेप है, जो सेकंड स्टेप में क्या लिखा है उन्होंने, वो सेकंड स्टेप, पहला स्टेप था स्वरूप योग का और दूसरा है सत्कर्म। तो सत्कर्म के ऊपर आपको चिंतन मनन करना है और वो चिंतन मनन करके आपको भी कुछ मटेरियल तैयार करना है। मेरे लिए सत्कर्म करना मतलब क्या करना, पीपीटी भी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी है, आपको दिया हुआ है ग्रुप में। तो मैं चाहता हूं कि आप भी शेयर करो, आप पहले बोलो, उसके वजह से कुछ इंसाइट्स खुलते हैं तो उससे प्रेरणा मिलती है। अभी वो दिल्ली का जो प्रसंग मैंने बताया उससे प्रेरणा मिली, जो उस वक्त नहीं समझा था वो बाद में समझा कि भरत भाई ने बाहें क्यों फैलाई, तो फैलाने वाला कौन, तो कि काका जी। तो काका जी महाराज किधर किधर, तो कि इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो वो जो धुन है जो चल रही थी, फिर बोला कि अभी आप उधर जाओ, धुन चल रही है काका जी की समाधि के पास। तो वो तत्व यहाँ पे भी है और वो कार्य करने वाले हैं, उसका अंदेशा दिया। अभी कलश चढ़ाने का था ना, तभी कलश चढ़ाने का प्रोग्राम था, तो तब हम सबको दिल्ली लेके गए थे। ठीक है, ओके। इसी के साथ में आज का ये सत्संग हम यहीं संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय, धाम धामी मुक्तों की जय जय जय, सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय, आज के आनंद की जय जय जय, मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को स्नेह पूर्वक पाय लागन जय स्वामीनारायण।
सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो अज्ञान लोपी क्षण।